नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतन मोइत्रो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल गुरु शांतन। स्वागत है अगर आप नए आए हैं। फिर से स्वागत है एक्सेल टॉक्स विद एक्सेल गुरु शांतन सीजन 1 एपिसोड 5। मैं अपने इस टॉक शो में मेरे कुछ गेस्ट को बुलाता हूं और उनके साथ एक्सेल के ऊपर चर्चा करता हूं। तो आज के एपिसोड के खास मेहमान हैं आरात्रिका चौधरी। स्वागत है आरात्रिका। आरात्रिका थैंक यू शांत। आरात्रिका पिछले विज़र्ड कंपनी में काम करती थी और वहाँ पे सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव भी थी। 2 साल वहाँ पे काम करने के बाद शी रियलाइज्ड कि मुझको अपग्रेड करना है, तो करंटली वो पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए कर रही है और वो भी एचआर में। स्वागत है आरात्रिका। That's correct. Thank you, Shantan, for this wonderful introduction. And I feel pleased to be contributed something in the field of Excel when HR is a concern. तो So we can आरात्रिका start. तो आरात्रिका, मैंने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं अब कुछ गेस्ट को बुलाता हूँ और उनके साथ एक्सेल के ऊपर चर्चा करता हूँ। तो आज का एपिसोड का टॉपिक है एचआर और एक्सेल, और शुड आई से रोल ऑफ एक्सेल इन द फील्ड ऑफ एचआर। तो जैसे कि आप एचआर के प्रोफेशनल रहे हैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ में और अभी एमबीए कर रहे हैं एचआर में, तो आई थॉट ऑफ इनवाइटिंग यू इन माय टॉक शो। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। Pleasure, Shantan. तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपके अनुसार उनका जो जवाब होना चाहिए आप हमें बताइए। साउंड्स फेयर? Sure. तो आरक्षिका, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अगर मैं एक्सेल का बात करूं इन द फील्ड ऑफ एचआर, तो आपके अनुसार एचआर की फील्ड में जो जो हम एचआर के क्या बोलते हैं उनको वर्टिकल्स जो है, जैसे एचआर बीपी है, एचआर जनरलिस्ट है, और एचआर के जो रोल्स हैं मतलब टैलेंट एक्विजिशन, कंपेंसेशन बेनिफिट्स, एम्प्लॉय जो बेनिफिट्स है, तो उनके उस जो रोल्स है, तो उनके अंदर एक्सेल का क्या रोल है, अगर आप हाइलाइट कर सकते हैं तो? This is a very nice question, Shantan. क्योंकि there is a saying, HR works as a glue of organization when it comes to retention of the people. So now I'll say Excel works as a glue of HR when it comes to the survival of HR. So rightly mentioned by you, in HR we have different avenues like recruitment, we have training and development, we have compensation and benefit that can be called payroll, we have employee reorder recognition. So pertaining to these four avenues, we have different job role like HR generalist, HR talent acquisition, HR BP, and many more. So whatever vertical you talk about, you need to know at least basic Excel. Even if you're not a person who don't want to furnish their career in the field of compensation and benefit and payroll, then also you need to know the basic of HR, because HR means the maintenance of people, where you need to record data, because we are now dealing with technology. Gone are those days when HR used to keep this much motor file to maintain and compile employee data. No, now it's Excel. Though every company have a inbuilt HRMS system where we can compile HR data, still we have to do a backup in Excel. For that, we need to prepare employee tracker, different kind of calendar like training calendar, recruitment calendar. We need to do metrics calculation in HR, though that is advanced, but for all of this we need to know some basic function called sum if, count if, filter, data validation, etc. We need to know. And I know, I have met many people in HR, they don't want to go for recruitment as they consider it's very tedious in nature. So for them, the other option is generalist. And in generalist, HR advanced Excel is a must, where you need to know pivot table, graphs, H lookup, and V lookup. So all these things you can say the backbone of HR. आरक्षिका, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू द फील्ड ऑफ एचआर, मैं एक टोटली नॉविस हूँ। भले ही मैं एक्सेल गुरु शायंतन हूँ, बट एचआर के फील्ड में आई एम नॉविस शायंतन। तो आपका ये जो आंसर था, डेफिनेटली इन द फील्ड ऑफ एचआर एक्सेल का क्या क्या इम्प्लीकेशंस है या क्या फॉर्मूलाज लगते हैं, वो डाउट एटलीस्ट मेरा क्लियर हो गया है।
और आशा करता हूँ कि आपका ये आंसर से मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिन लोग का एचआर स्पेशलाइजेशन है और जो लोग एचआर स्पेशलाइजेशन लेने का बात सोच रहे हैं, तो उन लोग का डेफिनेटली ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आद्रिका इस आंसर के लिए। थैंक यू आद्रिका, शांतन। मेरा आपसे एक और सवाल है और ये श्योर। मेरा आखिरी सवाल है, आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर मैं एचआर एनालिटिक्स का बात करूं, क्योंकि अभी वो बहुत बूमिंग है, मैं अगर बहुत सुनने में आ रहा है कि एचआर एनालिटिक्स, तो अगर आप हाईलाइट कर सकते हैं कि इस फील्ड में, एचआर एनालिटिक्स के फील्ड में एक्सेल का क्या रोल है या एक्सेल का कितना इंपॉर्टेंस है? क्योंकि अगर हम एनालिटिक्स का बात करें, चाहे वो मार्केटिंग एनालिटिक्स हो, एचआर एनालिटिक्स हो या फाइनेंस एनालिटिक्स हो, तो बहुत सारे हमको टूल्स अवेलेबल हैं। एनवीवो है, फिर एसपीएसएस है, पावर बीआई है, टैबल्यू है और एक्सेल है। तो इन सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में एक्सेल को आप कितना इंपॉर्टेंस दोगे? All right, Shantan. So HR में बच्चे जब आते हैं ना, and they got to know about the position HR analytics. Thanks that you asked me this question. So ये analytics ये एक भारी बहुत word है, सुन के लोग डर जाते हैं. But it's nothing very difficult. I know every one of us have an idea about statistic, mean, median, average. So analytics is just the extensive version of statistic that help or that leveraging the technology to take us data driven decision in business. So when it comes to HR, now HR are no more a cost center, they are a profit center to the organization, they are also contributing to the business, so they need to do data calculation. For that we have such tools like SPSS, SAP, Tableau, they are available. But when it's come to corporate usage and when it comes to the beginner, Excel is the key word or the key successor, you can say, in the field of analytics. Because Microsoft launch Excel have already defined and already loaded a function of statistic, and now they have upcome with a version of analytics toolkit in Excel. Shantan, I guess, have a very good idea about this. So with help of this, we can do regression analysis, linear, non-linear. We can do a analysis called vertive analysis. So what happened, how that can help us when we will be moving to the senior position in HR. Maybe आज आपका बॉस आके आपको बोल रही है कि शांतन आप 50 पीपल रिक्रूट करो, बट जब आप सीनियर पोजीशन में मूव कर जाओगे, यू विल बी द पर्सन यू विल बी फाइंडिंग आउट कितना लोग रिक्रूट करना है. तो बाय यूजेज ऑफ दिस फंक्शन, बाय यूजेज ऑफ डेटा, आप निकाल सकते हो बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन आपको कितना पीपल चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन. या तो you can calculate the attrition rate also and the probability of retention in upcoming days. So for all these things, Excel is a must know thing. And Excel Guru Shantan जब भी है, शांतन जल्दी से एनालिटिक्स की वीडियोस डालना अपने चैनल पे, सो ये एचआर एस्पिरेंट्स को थोड़ा इजी हो जाए सीखने में ये सब टूल. डेफिनेटली, डेफिनेटली. तो डेफिनेटली आरात्रिका, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द एनालिटिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ला पाऊं और मेरे जो व्यूअर्स है उन लोग को एनालिटिक्स आसान तरीके से सिखा पाऊं. क्योंकि मैं अगर एक्सेल का बात करूं तो देयर इज अ फियर एलिमेंट इन किड्स बोलो या कोई भी किसी एज ग्रुप का बोलो, देयर इज अ फियर एलिमेंट कि मेरे को एक्सेल नहीं आता, एक्सेल बहुत टफ चीज है, क्या करते हैं, बहुत सारा टफ फंक्शंस है. तो मेरा चैनल उसी पे हाईलाइट करता है कि एक्सेल इज नॉट अ गोस्ट, यू कैन मास्टर एक्सेल इन द मोस्ट इजी वे. तो मेरा चैनल उसी तरह काम करता है कि मेरा अगर आप वीडियोस देखते हो, डेफिनेटली आई एम श्योर कि मेरा आप वीडियोस देखते हो, तो उसमें बहुत ही लेमैन तरीके से एक्सेल का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है. और आपने भी बहुत ही लेमैन तरीके से एचआर एनालिटिक्स में एक्सेल का क्या रोल है, ये आपने हमारा क्लियर कर दिया है. और आशा करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स का भी एचआर एनालिटिक्स के ऊपर जो फोबिया था, जो फियर था कि एचआर एनालिटिक्स एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत डिफिकल्ट शब्द है, तो उसका भी आपने वो फियर क्लियर कर दिया है. तो बहुत-बहुत शुक्रिया आरात्रिका हमारे इस शो में आने के लिए. और मेरे व्यूअर्स को ये मैं बताना चाहूंगा कि अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए इस वीडियो के अगर आप क्या पसंद आया है, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मजेदार एक्सेल वीडियोस देखने के लिए. तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में. नमस्कार.